सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? ये जो हमारा वन ऑफ द क्वेश्चन, राइट, सेट में वन ऑफ द क्वेश्चन है, बस इसको एक मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, राइट? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग व्हाट वी जस्ट सॉ, एवरेजेस रखे। ये नहीं करना है लिक्विड लिया, मिक्स किया, टोटल क्वांटिटी, ये वो नहीं, डायरेक्ट एवरेज निकालो, परसेंटेजेस यूज करो, एवरेज निकालो, खत्म करो। अगर आप एलिगेशंस में कंफर्टेबल है, एलिगेशंस यूज करो, खत्म करो, राइट? सो सेम स्टफ वी आर गोइंग टू डील विद व्हाट, with the help of averages, that's it, right? दोनों एग्जांपल्स अपन ने देख लिया एवरेजेस को रख के, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलो। Few moments back. Hey yo MBA aspirants, hi, my name is Amit Surana and what I have here for you is CAT 2021 के थर्ड स्लॉट का one of the most infamous question, right? ये क्वेश्चन वन ऑफ द easier ones थे उस स्लॉट में, but at the same time majority of the people who took this slot up had faced an issue with this question. The major reason behind the issue was ये ना तो logical reasoning का question था, ना data interpretation का question था, ये था quant plus योर ओन, यू नो, यूजुअल जो पजल्स हम सॉल्व करते हैं कि 3 ग्लासेस है, इसको इसमें मिक्स करेंगे, उसको इसमें मिक्स करेंगे, इन हाउ मेनी वेज कैन यू फाइंड आउट, दैट काइंड ऑफ अ पजल, राइट? Which a lot of us were not prepared for. Yeah, the major problem behind this problem was lack of preparation. ऐसे क्वेश्चन आएंगे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था for that particular paper, right? तो आज हम देखेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके वहां पे पॉपअप हो जाए तो हाउ टू डील विद दैट। यस, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, right? If you want to have a look at the question, you can also go check out CAT 21 का slot 3 का paper, right? The question here given kind of explains what mixtures and allegations is all about, right? Mixtures allegations का base concept क्या है वो समझाया गया है यहाँ पे। So here they're saying each of the bottles mentioned in the question contains 50 ml of liquid and blah blah blah. There's so much of stuff here, right? यहाँ तक is the information. Yes, and this is just an example of whatever is told here. यहां पे जो कुछ भी बोला गया है उसका एग्जाम्पल दिया. In fact, they've given us 2 examples, right? They've given us one situation and they've also given us another situation. ये रहा, this is the second situation. Here is the first situation. Yes, ऊपर वाला जो concept है, that thing is common for both. Okay, so if ये रहा आपका first situation, second situation, and this is common for both of these examples, right? So what we are going to do is we are going to look at it in detail कि ये question कहना क्या चाह रहा भाई, आखिर कहना क्या चाहते हो, right? So let's go. We are going to go, one statement at a time, okay? So they're saying each of the bottles mentioned in this question contains 50 ml of liquid. Very good. The liquid in any bottle can be 100% pure content, 100% pure, no impurities, or can have a certain amount of impurity. How much we don't know, but it could have some amount of impurity. They're saying visually it is not possible to distinguish. देख के नहीं पता कर सकते हो कि किसमें क्या ज्यादा है, is it pure, is it impure? Can't do that, right? और पी के टेस्ट करने वाला चांस आपको लेना नहीं है. देयर इज अ टेस्टिंग डिवाइस, तो एक डिवाइस है जिसके थ्रू अपन टेस्ट कर सकते हैं, विच डिटेक्ट्स इंप्योरिटी. तो ये डिटेक्ट करेगा इम्प्योर है नहीं है, बट ये नहीं बताएगा कि कितनी इंप्योरिटी है. ऑल्सो अनदर कंडीशन इज दिस डिटेक्टर, दिस मशीन, दिस डिवाइस इज ओनली गोइंग टू टेस्ट and say there is impurity if there is 10% or more impure, right? If the liquid is 10% or more impure, तब ही ये बताएगा कि impurity है. अगर 10% से कम हुआ, 9, 8, whatever, 10% से कम हुआ impurity, then this is not going to show. So we're going to quickly have a look at this visually. ठीक है, एक बार इसको visually, we'll try to visualize this entire scenario कि ये कैसे चलेगा, right? So I'm going to take up some examples. For example, here's a 50 ml container. ठीक है, 50 ml का container है. This thing is purely filled with P. ठीक है, इसको जब टेस्ट करेंगे तब क्या आएगा? It will show that it is pure. Yes, beautiful. Next, we're going to take another situation, another container, जहां पे 40 ml is pure liquid and this yellow part, right, 10 ml is impurity, I. This is P, this is I. Now, quickly tell me, will the detector show pure or impure? Impurity दिखाएगा क्या device? Let's look at that. So what do we know? कि impurity should be 10% or more.
ये पूरा कितना है, दिस एंटायर थिंग इज 50 ml, राइट. 50 ml का 10% कितना होता है, what is 10% of 50 ml, 5 ml, correct. So we should get the impurity to be greater than or equal to 5 ml for the detector to show. Yes, let's see. If we put this under the testing, what would we get? We would get impure. Why? Because the impurity is more than 5 ml, more than 10%. Yes. Similar situation, look at this. Even if it is exactly 5 ml, exactly 5 ml भी, क्योंकि 10% or more, greater than or equal to 10%, right? तो 5 ml भी होगा, तब भी जब टेस्ट करेंगे क्या आएगा? It will still show impure only, right? However, if we take another situation, अगर हम दूसरा situation लेते हैं, same 50 ml का container but 46 ml of pure liquid and 4 ml of impure liquid. Now tell me whether it will show pure or impure. Yes. So is the decision conclusive? It will not be. It will show pure, but then it is still impure, right? तो जो decision, जो device बता रहा है, that is what? That is not clear, right? It's not clear. Why? Because there is impurity, but it's still showing pure. Yeah. So what's the deal here? 50 ml का 10% is 5 ml. This thing is less than 5 ml, है ना? अगर ये less than 5 ml है तो क्या हो जाएगा? The device cannot detect it. Yeah. So I hope you're getting it. Whatever is the quantity of the container, उसका 10%. Yes, 10% and above is what we are looking for. Now, so this was the intro of it, right? This was the intro of the question. Now we have two examples. We are going to take one at a time. Yes. They're saying, for example, suppose that bottle 1 contains only P. This is bottle 1, B1, only P, 50 ml of pure. Every bottle is 50 ml दे दिया, ठीक है? Every bottle is 50 ml, ये दे दिया. So 50 ml pure liquid. The other one they're saying, bottle 2 has what? Bottle 2 has 80% pure and 20%. So 50 ml का 80% कितना? 40 ml. Remaining 20%, that's 10 ml impurity. Pure, impure. Done. So this will be shown as impure. Test करेंगे तो impure होगा. क्यों? 20% impurity, 10% and above है. Done. Moving on. If content of bottle 2 is tested, it will reveal that it contains some amount of I. Obviously impure बताएगा, right? Done. If 10 ml of content from bottle 1. Now look at this part carefully, okay? क्या बोल रहे हैं? जो अपना bottle 1 है. Yes, bottle 1 से क्या निकाल रहे हैं? We are removing 10 ml. So अगर ये पूरा pure है तो इस 10 ml में भी full pure होगा. इसे हम X बुला लेते हैं, ठीक है? This 10 ml is called X. Yes. पूरा 50 ml से अगर मैं 10 ml निकालूंगा तो I will get what? 10 ml of pure liquid. Yes, P. However, अगर इसमें से निकालना, अब क्या बोल रहे हैं? And 20 ml content from bottle 2, right? 20 ml इधर से निकाल रहे. So इधर से जब 20 ml निकालेंगे उसमें क्या होगा? Impurity रहेगा, right? Now always remember, whenever किसी मिक्सचर से आप छोटा क्वांटिटी निकालते हो तो द रेशियो ऑफ A to B और इन दिस केस P to I, प्योर टू इम्प्योर लिक्विड, ये जो रेशियो है ये हमेशा सेम रहेगा. लुक एट दिस, 40:10 is 4:1, करेक्ट? सेम वे यहां पे जो मैं 20 ml निकालूंगा, दिस इज 20 ml, इसमें भी क्या रहेगा? रेशियो शुड बी 4:1. प्योर एंड इम्प्योर का रेशियो शुड बी 4:1. तो 20 ml को 4:1 में स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 and 4. Yes, I hope you're getting this. Yeah, the ratio of P and I in the larger container and in the smaller container will always be the same. ये आप कितना भी 1 ml भी अगर आप निकालोगे तो उसमें 800 ml will be pure and 200 ml will be impure, right? Like that. 1 liter I'm saying, for example, right? अगर 1 ml निकाल रहे हैं तो 0.8 and 0.2, like that. I hope you're getting it, okay? So 4:1 के रेशियो में रहे. Now what's the deal? They're mixing this, correct? The test will show that, okay, so they're saying what? If 10 ml of content from bottle 1 is mixed, इन दोनों का मिक्स कर रहे हैं. X and Y को हम दोनों मिक्स कर रहे हैं. तो X और Y मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? In Z we are going to mix X. तो X में 10 ml प्योर था, वो इधर आ गया 10 ml प्योर, एंड इसमें जो 16 ml प्योर था वो ऐड होके 10 + 16 26 एंड 4 ml की इंप्योरिटी, राइट?
ऑल्दो ये ऐसे नहीं रहेगा, पानी और तेल का सीन नहीं है कि पानी नीचे है तेल ऊपर है, दिस विल बी मिक्स्ड ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। तो अब हम किसे टेस्ट करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू टेस्ट, दिस नो दिस नो दिस नो दिस, बॉटल Z, राइट, Z को हम मिक्स करेंगे, सो आई एम गोइंग टू रिमूव द रेस्ट, वी आर गोइंग टू लुक एट दिस बॉटल Z, ठीक है। तो बॉटल Z को हमें क्या करना है, वी हैव टू टेस्ट दिस, क्विकली टेल मी गाइस, विल इट शो प्योर और इम्प्योर, क्या है ये 26 + 4 दैट इज 30 ml, यस ये कितना है, ये 30 ml है, इसका 10% इज हाउ मच, 3 ml, करेक्ट, यस, क्या ये 3 ml से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, सो इट शुड शो इम्प्योर, डज इट शो इम्प्योर, yes it will, that is what is given in the question also, the test will show that the mixture has impurity, yes. Now the second example, same situation है, pure 50 ml, impure 50 ml, impure में 80% pure है, 20% impure है, right, from pure we are taking 10 ml, this time instead of taking 20 ml from impure we are only taking 5 ml, ये देखो impure में हम सिर्फ 5 ml ले रहे हैं, यस, तो 5 ml में भी रेशियो क्या रहेगा, 4:1, क्योंकि यहां पे 4:1 है, सेम रेशियो 4:1 यहां पर भी रहेगा, राइट। सो आउट ऑफ 5 ml 4 ml इज गोइंग टू बी प्योर, 1 ml इज गोइंग टू बी इम्प्योर, 4:1, राइट। अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे Z में, तो क्या हो जाएगा 10 + 4, राइट, ये 10 ml का प्योर और ये 4 ml का प्योर मिक्स होके 14 ml प्योर हो जाएगा, और बाकी जो 1 ml है विल बी दैट इम्प्योरिटी, डन, ये 1 ml इम्प्योरिटी, ये 14 ml प्योर, कूल, यस। अगेन व्हाट आर वी टू टेस्ट, दिस नो, बॉटल Z अलोन, राइट, तो बॉटल Z को फटाफट से टेस्ट करेंगे, क्विकली टेल मी गाइस, व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी प्योर और इम्प्योर, विल इट शो प्योर और इम्प्योर, विल द फाइनल फैक्टर बी इनडिसाइसिव और डिसाइसिव, इनडिसाइसिव, व्हाई, इट विल शो प्योर क्योंकि 14 + 1 is 15, करेक्ट, 14 + 1 is 15 ml, 15 ml का 10% कितना होगा, 1.5 ml, करेक्ट, यस, तो 1.5 एंड अबव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 रहा तो इट विल शो इम्प्योरिटी, बट यहां पे क्या है, जस्ट 1 ml, 1 ml is less than 1.5 ml, right, do you agree, it's less than 1.5, so will it show the true value, no, it will show indecisive, it is showing pure but it is still impure, understood। तो ये है डिवाइस का मैकेनिज्म, we've been given examples। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये सब तो ठीक है, बट जो क्वेश्चंस है, द क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ अगेन डिफरेंट, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ व्हाट इट इज डूइंग, राइट। अब इतना टाइम अगर हम क्वेश्चन को समझने में लगाएंगे, देन वी विल, दिस इज जस्ट द सेट, राइट, सेट एंड एग्जाम्पल को समझा अपन ने, इसको रख के नाउ वी हैव टू स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग द क्वेश्चन एंड ट्राइंग आउट, और यहां पे एवरी क्वेश्चन, राइट, हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है, या एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन, या दैट बेसिकली मीन्स कि जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक लगाया वो शायद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में ना काम आए, या अगेन व्हाट हैपेंस, इतना टाइम अगर सेट को समझने में लगाया है, फिर आप दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप ऑल योर 40 minutes, राइट, यू विल एंड अप स्पेंडिंग ऑल योर 40 minutes, so आपके पास कुछ रहेगा नहीं टू स्पेंड ऑन द रिमेनिंग 3 sets, yes, 3 or 4 sets, whatever, right। So in such a situation, right, how would an MBA वाला student solve this, yes, अगर कोई MBA वाला को फॉलो कर रहा है वो इसे कैसे सॉल्व करेगा, let's quickly have a look at that, yeah। So the idea is what, 10%, correct, the idea is 10%, so अगर हमें impurity 10% चाहिए, अगर हमारी जो impurity है वो 10% एंड अबाउ चाहिए, करेक्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% चाहिए टू शो इंप्योरिटी, राइट, जो डिवाइस है वो बताए कि सही बताए इंप्योरिटी है, या तो अगर इंप्योरिटी 10% से ज्यादा होनी चाहिए तो प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, यस, टोटल 100% में से, टोटल 100% में से अगर मैं 10% रिमूव करूं तो कितना बचता है, 90%, करेक्ट, 100 में से 10 रिमूव किया, 90%, 100 में से 10 से ज्यादा 11, 12, 13, तो ये क्या हो जाएगा 89, 88, 87 एंड सो ऑन, सो दिस हैज टू बी व्हाट
ग्रेटर देन, सॉरी, इट हैज टू बी व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 90%, करेक्ट। प्योरिटी जो है लेस देन और इक्वल टू 90% होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी शुड हैव इन माइंड. यस, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस इज एलिगेशंस. यस, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, एलिगेशंस अप्लाई करेंगे, विच इज गोइंग टू मेक आवर जॉब सो मच इजी. यस, चलो एलिगेशन देखते हैं. एलिगेशन का क्या सीन है, सिंपल. इफ आई एम मिक्सिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिक्स कर रहा हूं प्योर लिक्विड को से 100% वाला, यस, एंड इम्प्योर लिक्विड को जिसमें प्योरिटी, राइट, बॉटल 1 बॉटल 2 का सिस्टम रखते हैं, राइट. लेट्स नॉट डू ऑल ऑफ दिस. अगर मैं मिक्स कर रहा हूं बॉटल 1 जिसमें 100% प्योरिटी है और बॉटल 2 जिसमें प्रीवियस एग्जांपल, जो क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था उसको ले रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन में जो एग्जांपल दिया था उसको ले रहे हैं. बॉटल 2 उसमें क्या था, देयर वाज 80% प्योरिटी, करेक्ट. 20% इम्प्योर, 80% प्योरिटी. या अब इन दोनों को मिक्स किया उन्होंने. यस, वी मिक्स दीज बोथ इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो, इसे अगर 10 ml मिक्स किया तो इसे 20 ml, करेक्ट. ये 10 ml था और ये 20 ml. सो व्हाट इज द रेशियो, 1:2. ये दिख रहा है 1:2. यस, दैट बेसिकली मीन्स ये जो डिफरेंस है, ये जो 20% का डिफरेंस है, यस, इसे हमें स्प्लिट करना है 1:2 के रेशियो में. या इसमें अगर नहीं घुसना है सर, इसमें नहीं घुसना है, थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है, तो इससे भी एक हल्का सा वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज वेटेड एवरेज, राइट. वेटेड एवरेज याद है क्या कर रहे हैं हम 100% वाला लिक्विड 1 पार्ट मिक्स कर रहे हैं एंड 80% वाला लिक्विड जो है उसे 2 पार्ट्स में मिक्स कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में. उसका अगर मैं एवरेज ले लू, 1 + 2 इज व्हाट, 3 पार्ट्स, करेक्ट. 1 + 2 कितना है, 3 पार्ट्स. उसका अगर मैं एवरेज ले लू तो कितना हो जाएगा, 100 + 80 × 2 is what, 160. So 100 + 160 is 260 divided by 3. Yes, बस आपको इतना सा देखना है. Is this greater than or equal to 90? परसेंटेज में है ऑब्वियसली. तो is this greater than equal to 90? क्या ये 90 से ज्यादा है, 90 या 90 से ज्यादा नहीं. Yes, this is less than 90 क्योंकि 3 × 90 270. अगर न्यूमरेटर में 270 होता तो दिस वुड हैव बीन 90, करेक्ट. ये नहीं है. सो आपको बस यही करना है, सिंपल सी चीज करनी है. यहां पे देखो, दिस विल बी इनडिसाइसिव, राइट. इसमें हमें प्योर दिखाएगा, ऑल्दो इंप्योरिटी है, प्योर दिखाएगा, याद है. सेम थिंग दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सेकेंड एग्जांपल, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द सेकेंड एग्जांपल गाइस. सेकेंड एग्जांपल में क्या चल रहा, सेम थिंग, राइट. इंस्टेड 100% वाला 2 पार्ट्स में था, 10 ml 5 ml, 10:5 2:1, है ना. 100% वाला 2 पार्ट्स में था, 80% वाला 1 पार्ट में था. दिस डिवाइडेड बाय अगेन 2 + 1 कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स हो गए, करेक्ट. दिस इज हाउ मच, 100 × 2 200, 200 + 80 280% by 3. इसका एवरेज कितना, 280/3, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 90, है ना. यस, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 270 + 10, सो 93.33%. Are you getting this? 93.33%. तो यहां पे हमें इंप्योर बताया था, वाई, क्योंकि प्योर 90% से कम है, मतलब इंप्योर 10% से ज्यादा. और यहां पे हमें प्योर दिखाया था, क्यों, क्योंकि प्योर लिक्विड 90% से ज्यादा है, मतलब इंप्योर 10% से कम है. इंप्योर 10% से कम हुआ तो इनडिसाइसिव, करेक्ट. यस, तो बस इतना सा ही करना है, एवरेज देखना है हमें, राइट. चालू करें. यस, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस क्वेश्चन. ये क्या बोल रहा है, देयर आर 4 बॉटल्स, 4 बॉटल है, हमें पता है चारों बॉटल 50 ml की होने वाली है, राइट. आई एम गोइंग टू कॉल देम बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 3, बॉटल 4, राइट. चारों बॉटल जो है 50 ml की है, 50 ml ईच. Yes, chalo, 50 ml each. Now, moving on, what are they saying? They're saying that 3 of these bottles contain only P. 3 बॉटल है जो only P है. तो चलो फर्स्ट 3 को P ले लेते हैं, ठीक है. दिस इज P, परसेंटेज में लिख लेते हैं. चलो, लेट्स डू दैट इवन बेटर, थोड़ा सा क्लैरिटी हमें मिलेगा, राइट. सो दिस इज 100% P, दिस इज 100% P, एंड दिस इज 100% P.
correct? And they're saying one of the bottles contain 80% P and 20% impurity. तो ये क्या है? 80% P है, ठीक है? हो गया क्लियर? 100 100 100 and this is 80% purity. They're saying what is the minimum number of tests required to identify the bottle containing some amount of I. तो क्या impurity तो होगा, impurity तो डलेगा उसमें, बट ये चेक करना है कि कितने अटेम्प्ट्स में हमारा डिवाइस डिसाइसिवली क्लियरली बता दे कि इंप्योरिटी है. यस, टेस्टिंग के बाद इंप्योरिटी रेड कलर का धब्बा उस पर लगा दे कि इंप्योर है. हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि सर अगर हम इन चारों को एक साथ में मिला दे तो 4 लिक्विड है, 1 2 3 4 बॉटल 1 till 4, चारों को अगर साथ में मिला दें 50-50 ml ऑफ ईच. ml का हमें कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा यहां पे? दिस इज 100% एवरेज ले रहे, ठीक है? सो फर्स्ट वी आर अटेम्प्टिंग, क्योंकि चारों को अगर एक साथ में मिला दें, हमारा एम क्या है? व्हाट इज आवर एम? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ टेस्ट कम करने, नंबर ऑफ टेस्ट कम करने. लीस्ट नंबर 0 नहीं कर सकते, टेस्ट किए बिना नहीं बता सकते, राइट? लिक्विड को देख के नहीं कर सकते, वो क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया. सो द नेक्स्ट लीस्ट नंबर इज 1. 1 अटेम्प्ट में पता कैसे चलेगा? अगर चारों को मैं मिक्स कर दूं, राइट? क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन से बॉटल में इंप्योरिटी है, राइट? इंप्योरिटी है वो ठीक है, किसमें हमें नहीं पता. तो हम क्या करेंगे अभी? वी आर गोइंग टू डू ऑल 4 एट वंस, है ना? 4 एट वंस, ताकि क्या हो जाए कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रेड्यूसेस, राइट? चारों अगर एक साथ में मिला दे तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 80, है ना? परसेंटेज ऑफ पी, करेक्ट? इसका एवरेज निकालना है क्योंकि चारों इक्वल क्वांटिटी है, 50-50 ml ईच पूरा बॉटल. तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट? 4 इक्वल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 4. लेट्स सी इज दिस आंसर लेस देन और इक्वल टू 90, है ना? लेस देन और इक्वल टू 90 चाहिए हमें. वी वांट लेस देन और इक्वल टू 90%. लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. यस, चलो कैसे? 100 300 380% by 4. 380 by 4, 360 by 4 is 90. So this thing, is it less than or equal to 90%? नहीं भाई, नहीं. This thing is greater than 90%, है ना? क्योंकि 360 plus 20 मतलब ये 95%. 95% प्योरिटी है, 5% impurity. Will it work? नहीं, करने से कोई मतलब नहीं है. So 1 cannot be our answer, right? 1, least number of attempts being 1 can't be our answer. चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं. Let's try and do this using 3 at once. 3 लिक्विड को मिला के, right? 3 लिक्विड्स को मिला के. So I'm going to erase this part. चलो ये ऐसा ही है, same we are going to use, right? I'm going to erase this part. 4 at once तो काम नहीं किया भाई. 4 at once did not work out. Why? Because we are getting greater than 90% where we want less than or equal to 90%. So 4 at once didn't work out for us. Nope. So next we are going to do what? है ना? 3 at once. अब इन तीनों को मिक्स करके तो मतलब नहीं है. B1 B2 B3 को मिक्स करूंगा, कोई इंप्योरिटी नहीं है तो क्या ही चेक करेंगे, राइट? तो क्या करेंगे? इन 3 को मिक्स करके देखते हैं. Any 3 where B4 is mandatory. Any 3, either B1 B2 B4 और B1 B3 B4 और B2 B3 B4, जो भी कोई भी 3 ऐसे लेके ट्राई करते हैं, ठीक है? पहले ट्राई करते फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखते हैं. तो ट्राई करने पे क्या होगा? वी हैव 100 प्लस 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट? दिस इज अगेन हाउ मच? 100 200 280. 280 by 3, is it greater than 90? Yes it is, but we want less than 90, correct? ये greater than 90 है, ये हमें नहीं चाहिए भाई. greater than 90 अगर ये हुआ तो impurity less than 10, impurity less than 10 नहीं काम आएगा. so this is also out, right? so 3 at once भी नहीं कर सकते. this one is also gone. 3 at once में भी greater than equal to 90 आ रहा है, where we want less than 90. this is gone. yeah, the next thing, अच्छा अगर 2 at once करेंगे, राइट? 2 at once, उसके पहले रूल आउट कर देते हैं 1 at a time, राइट? 1 at a time मतलब क्या? करके लेंगे, एक एक करके. या पहले बॉटल 1 लेके टेस्ट करेंगे, क्या बताएगा? प्योर बताएगा. बॉटल 2 लेके टेस्ट करेंगे, क्या बताएगा? प्योर बताएगा.
बॉटल 3 लेके टेस्ट करेंगे, प्योर बताएगा, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है बॉटल 4 में इंप्योरिटी है, राइट? तो 3 अटेम्प्ट्स में पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम, मिनिमम इज 1 अटेम्प्ट। इसको डाला, B4 को डाला, इंप्योरिटी दिखा दिया भाई, यस दिस इज द इंप्योर वन, राइट? मिनिमम 1 अटेम्प्ट, मैक्सिमम 3। सो 1 से लेके 3, मिनिमम 1 अटेम्प्ट, मैक्सिमम 3। बट व्हाट डू वी हैव टू लुक एट? वी हैव टू लुक एट द कंडीशन वेयर वी डेफिनेटली गेट इट। एक पे डेफिनेटली मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक बॉटल, जो पहली बॉटल हम डालेंगे, इट कुड बी B1, इट कुड बी B2, इट कुड बी B3 ऑल्सो। अगर इन तीनों में से हुई तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट, वापस इन दोनों में से कोई हुई तो थर्ड अटेम्प्ट, राइट? बट 3 अटेम्प्ट्स में हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं कि कौन सी इंप्योर है, राइट? सो फॉर नाउ अपना आंसर यहां पे क्या है? 3, राइट? बट वी हैव टू सी इज देयर एनी अदर मेथड, इससे अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हम मिनिमाइज नंबर 3 से भी कम अटेम्प्ट्स में ये ढूंढ ले कि इंप्योर लिक्विड किस में है, राइट? सो हाउ डू वी डू दैट? व्हाट वुड बी द लीस्ट नंबर? टेकिंग 2 एट अ टाइम। व्हाई? क्योंकि देखो, इसका पहले ये देखते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन देखते हैं, एवरेज निकाल के 2 एट अ टाइम में ऑब्वियसली इन दोनों को या इन दोनों को लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो प्योर ही दिखाएगा। बट वी हैव टू टेक दिस B4 एंड एनी वन ऑफ दीज 3, राइट? B1 एंड B4, B2, B4, B3, B4 कोई भी। तो अगर एक 100% वाला है और दूसरा 80% वाला है, यस, एंड क्योंकि हम इक्वल पार्ट्स में 2 बॉटल्स मिक्स कर रहे हैं, 50 ml 50 ml, 2 बॉटल्स इक्वल पार्ट्स, 1 + 1 2, 1:1 के रेशियो में क्या हो गया? ये 100 + 80 is 180%, by 2 is how much? 90%. Yes. Is 90% less than 90? नहीं, but is it equal to 90? Yes, it is. Yes, 90% is equal to 90. मतलब अगर प्योरिटी 90 है तो इम्प्योरिटी 10 है, इम्प्योरिटी 10 है मतलब हमारा जो डिवाइस है, इट विल डेफिनेटली शो द राइट वन, इट विल शो इम्प्योर। क्यों? 10% and more. Got it, guys? Yes. So with this, we know कि अगर 2 at a time mix करेंगे, 2 at a time if we test, even then it will work. But let's see the number of attempts. So if we take 2 at a time, अगर हम 2 बॉटल एक साथ में लेते हैं तो कैसे होगा, right? Let's say B1, B2, B3 and B4, correct? This is 100%. This is 100%, this is 100%, and this one is 80. अब हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ये ध्यान में रखना है दैट वर्स्ट केस सिनेरियो निकालना है, वर्स्ट केस। तो लेट्स से कोई 2 बॉटल उठा रहा हूं मैं, ये 2 उठा लिया मैंने गलती से, ठीक है? ये 2 बॉटल उठाया मैंने, डिवाइस में डाला, क्या आएगा? प्योर आएगा, राइट? आई पुट दिस 2, इट विल शो प्योर। अगर ये प्योर बता देता है, अगर ये प्योर बता देता है, फर्स्ट 2 बॉटल्स में अगर प्योर बता देता है, तो आई नो दैट इंप्योरिटी इज वेयर? हियर, करेक्ट? डू यू एग्री? अगर एक ये 2 में इंप्योर बता देता, प्योर बता देता है, तो आई नो इंप्योरिटी या तो बॉटल 3 में होगी या 4 में होगी। यस। ऑल्टरनेटिवली अगर ये इंप्योर बता देता है, इफ दिस शोज इंप्योर, देन आई नो कि B1 या B2 में से कोई एक इंप्योर है। डन है? ये वाला सीन क्लियर है? अब अगर प्योर बताएगा, अगर सो अपना एक अटेम्प्ट हो गया, 1 अटेम्प्ट एट टेस्टिंग इज डन। यस, 3 से कम करना है, मतलब 2 अटेम्प्ट्स में पता करना। अब 2 अटेम्प्ट्स में कैसे पता करेंगे? अगर B1 B2 प्योर है तो इधर B3 और B4 दोनों में से कोई एक को टेस्ट करेंगे। वी विल टेस्ट इधर B3 और इधर B4। लेट्स से हम B3 को टेस्ट किए, राइट? वी टेस्ट B3, दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट। या इफ दिस ऑल्सो शोज प्योर, अगर ये भी प्योर बता देगा तो क्या हमें पता है B4 में इंप्योरिटी है। 2 अटेम्प्ट्स में वी फाउंड आउट B4 हैज इंप्योरिटी। मेक सेंस? सेम वे अगर इसमें इंप्योर बता दिया, B1 B2 में इंप्योर बताएगा नहीं क्योंकि 100% है, जस्ट सेइंग, अगर इंप्योर बता दिया तो इन दोनों में से किसी एक में इंप्योरिटी है। दैट मीन्स यू विल टेस्ट एनी वन। B1 टेस्ट करेंगे, B1 में इंप्योर है तो B1 इंप्योर, B1 में प्योर है तो B2 इंप्योर। So what do we get? We get the solution. We get the impure bottle in just 2 attempts, right? We're getting the impure bottle in just 2 attempts.
यस, तो 2 बार टेस्टिंग में वी आर गेटिंग द इम्प्योरिटी. आर यू गेटिंग दिस? All 4 at once, 1 attempt काम नहीं आया, 3 at once didn't work out, 1 at a time worked out, but it would give us 3, it would take us 3 attempts to get it. But उससे भी कम किस में है? 2 attempts में. I hope you're getting this, right? So guys, I hope you've understood this, है ना? ये है MBA वाला तरीका. This is your smarter way, faster way of moving at zeroing down questions that you can easily do it in the test. I hope whatever you've done here is clear and understood. All the best, guys. Cheers.